आदाब, मैं जमील अहमद प्राइम न्यूज इंडिया के खास बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। आज तारीख 6 सितंबर 2020 कर्नाटका स्टेट के माइनॉरिटी मिनिस्टर श्री श्रीमंत बाला साहेब पाटिल ने बेलगावी का किया दौरा और डीसी ऑफिस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में माइनॉरिटीज के मुद्दों के बारे में की चर्चा। इस चर्चा में माइनॉरिटी मिनिस्टर श्री श्रीमंत बाला साहेब पाटिल के साथ कर्नाटका स्टेट के माइनॉरिटी डायरेक्टर श्री महबूब साहब, बेलगावी माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट के डीसी श्री गोपाल लमानी साहब भी मौजूद थे। चर्चा के बाद प्राइम न्यूज इंडिया की टीम से बात करते हुए माइनॉरिटीज मिनिस्टर और माइनॉरिटी डायरेक्टर और माइनॉरिटी डीसी बेलगावी साहब ने माइनॉरिटीज के मुद्दों पर रोशनी डाली। कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी मिनिस्टर श्री श्रीमंत बाला साहेब पाटिल ने बेलगावी का दौरा कर बेलगावी डीसी ऑफिस पहुंचे, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर्नाटका के तमाम माइनॉरिटी डीसी से चर्चा की गई। चर्चा के बाद प्राइम न्यूज इंडिया संचार टाइम क्राइम न्यूज से एक मुख्तसर सी मुलाकात की। इस मुलाकात में माइनॉरिटीज मिनिस्टर से कई सवालों को पूछा गया, जिनमें खासकर माइनॉरिटीज बच्चों के स्कूल, कॉलेज और यहां तक के डिग्री कॉलेज के बारे में भी पूछे गए तमाम सवालात को मिनिस्टर साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में जवाब दिया और खासकर कर्नाटका बीजेपी गवर्नमेंट माइनॉरिटीज के लिए किन किन कामों को अंजाम दे रही है और उनकी तरक्की के लिए क्या क्या स्कीम गवर्नमेंट के पास है बताया। और माइनॉरिटीज मिनिस्टर श्रीमंत बाला साहेब पाटिल साहब ने दिल की गहराइयों से माइनॉरिटीज की एजुकेशन और माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट की बात भी की और उनकी तरक्की के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट पूरी तरह साथ देगी, ऐसा भरोसा मंत्री जी ने दिलाया। श्रीमंत पाटिल साहब, माइनॉरिटीज मिनिस्टर, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी, मैं आपसे सर पूछना चाहता हूं, जो आप मीटिंग लिए माइनॉरिटीज़ की, इस किस सिलसिले में आप मीटिंग लिए और माइनॉरिटीज़ के लिए आपके पास प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं सर? विच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स यू हैव टू माइनॉरिटीज़? ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 360 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳು ಅದಾವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅದಾವೆ, ನವೋದಯ ಅದಾವೆ, ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಸುಮಾರು 39,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ವೈರಸ್ದಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಯಾವುದೂ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದಿಂದ ಯಾವಾಗ ಭೀ ಬರ್ಬೋದು ಆರ್ಡರ್ ಶಾಲೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಿಂದ ಚಾಲೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಿಂಗೆ ನಮಗೆ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ನಾವು ಈ ಕೋವಿಡ್ ವೈರಸ್ ಜೊತೆಲೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗೈತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಬೇಕು ಬರಬೇಕು, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನೇನು ನಾವು ಮೇಜರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಕೂಡ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮಾತಾಡಿ ಯಾವ ಮೆಜರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅದರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನೋಡುವುದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೋಡುವುದು, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಸೇಫ್ಟಿ ಸೈಡ್ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮೈನಾರಿಟಿ ಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಮತ್ತು ಜಾಬ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಯಾವುದೂ ಜಾಬ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ITI ಇರಲಿ, ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲಾಗಿದ್ದು. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ITI ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಡಿವಿಷನ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಅದು ತಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಜಾಬ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೇಡ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ. ಈ ಮದರಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಏನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾವೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಟು SSLC ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ITI ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಟೋಟಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಏನೇನು ಶಕ್ಯತೆ ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್, ಈಗ ಮಾइनॉरिटीज ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.
ಮಕ್ಕಳು ಪಾಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಕತ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಂಚ್ ಅವ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಬರಬೇಕು ಬಟ್ ಕ್ಲೀನ್ಲೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಸರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸ್ಕೂಲ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ 100% ಐತಿ 90 ಮ್ಯಾಗ ಐತಿ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ನಾವು ಮುಂದೆ ಅದೀವಿ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಐತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಗದಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಫುಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇರ್ತವೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಫುಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅತಿ ಕಾಳಜಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅದಕ್ಕೆ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು ಸ್ವತಃ ಹೋಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ವೈರಸ್ದಿಂದ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವತಃ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂಥದ್ದು ಏನು ಹೊಲಸು ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ स्ट्रिक्ट एक्शन तगोती हूँ नम स्कूल्स ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಇರಲೇಬೇಕು आपका नाम हम लोग सुने कि आप पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज तालुका वाइज ये विजिट कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ के और जो माइनॉरिटीज़ के डीसी हैं उनसे डिस्कस कर रहे हैं अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस भी किया आपने आपकी बहुत तारीफ सुने हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ के स्कूल्स बच्चे और उनको फैसिलिटीज़ मुहैया हो हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और भी इसके लिए करने की क्या ज़रूरत है और भी कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए सबसे मैं हर जगह देखता हूँ माइनॉरिटीज़ के स्कूल जैसे उर्दू मीडियम है मराठी मीडियम है कन्नड़ा मीडियम जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ पे फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं होती बैठने के लिए बेंच नहीं रहते ऐसा नहीं इसको ज़रा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ये इम्प्रूवमेंट होगा माइनॉरिटीज़ तो हमारे देश को भी अच्छा लगेगा हमारे स्टेट को भी अच्छा हमारे सब स्कूल बहुत अच्छे स्टैंडर्ड वाले सभी फैसिलिटी वहाँ है और हम हर डिस्ट्रिक्ट को विजिट कर रहे हैं माइनॉरिटी लोगों को बुला रहे हैं उनसे क्या सजेशन मिलता है कि वो भी देख रहे हैं ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಅದಾವೆ ಏನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಗಿಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರುತಿರ್ತದೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡೋದು ವಿಚಾರ ಐತಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಸಜೆಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಸರ್ ನೀವು ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಕರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದಾಗಿದೆ ಫೀಸ್ ತುಂಬಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಅದ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋ ಜರೂರಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಗದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಡವ ಇರಲಿ ಯಾರು ಇರಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಭಗವಾನ್ಲಿಂದ ಇದೇ ಇದೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯು ದಟ್ ಇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲೇನ ಅದೀವಿ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ कोरोना वायरस की महामारी से परेशान और बीमार लोगों की मदद करने वाला इदारा अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम जिनके सदर राजू सेठ साहब जनरल सेक्रेटरी समीउल्लाह माड़ीवाले वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल गफूर ही वाले हनीफ सिद्दीकी साहब अब्दुल खादर ही वाले अमीन पट्टेकेरी अशफा गोरी बाबूलाल मुजावर आप इनसे राब्ता कायम करें। जैनुमुल फाउंडेशन सर्विस टू ह्यूमैनिटी इंजीनियर शाहनवाज एन मुल्ला फाउंडर चेयरमैन जैनुमुल फाउंडेशन एंड जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फर्म। तमाम खबरों को प्राइम न्यूज इंडिया पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलिए। इसी तरह कर्नाटका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर श्री महबूब साहब भी बेंगलुरु से बेलगावी पे चर्चा के लिए आए हुए थे। कर्नाटका के माइनॉरिटी डायरेक्टर जनाब महबूब साहब से प्राइम न्यूज इंडिया संचार टाइम क्राइम न्यूज की टीम ने कई सवालात किए, बड़ी ही बेबाकी और पूरे विश्वास के साथ जवाब दिया। खासकर माइनॉरिटीज के स्कूलों के बारे में बातचीत की। बेलगावी जिले में एडमिशन ज्यादा है मगर सीट्स की कमी होने की वजह से इस कमी को भी पूरा करने का भरोसा दिलाया। प्राइम न्यूज़ इंडिया संचार टाइम्स क्राइम न्यूज़ से मैं जमील अहमद। आज हम यहाँ पर डीसी ऑफिस बेलगावी में मौजूद हैं जो माइनॉरिटीज़ की एक मीटिंग चल रही थी कर्नाटक स्टेट माइनॉरिटीज़ की,
जहाँ पे हमारे माइनॉरिटीज़ के डायरेक्टर कर्नाटका के महबूब साहब भी आए हैं। जो अभी आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही थी सर, वो उसमें क्या क्या डिस्कस हुए? जी, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस जो हुई ये हमारे डिपार्टमेंट के मिनिस्टर श्रीमंत बाला साहेब पाटिल साहब के इंस्ट्रक्शन पे हुई। इसमें जो हम इस साल जो एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज मेजर जो कोविड की वजह से अभी तक स्कूल कॉलेजेस स्टार्ट नहीं हुए, वो किस तरीके से स्टार्ट किया जाए मेजर। तो एक मेजर मुद्दा की एडमिशन्स, फर्स्ट मेजर मुद्दा एडमिशन्स। बेलगाम डिवीज़न एंड गुलबर्गा डिवीज़न में एडमिशन्स तो सेटिस्फाइड है, तो मैसूर बेंगलुरु में थोड़ा वीक है, उसको स्ट्रेंथन करने का एक रीज़न। दूसरा, एडमिशन के साथ साथ लास्ट ईयर का रिज़ल्ट और इस साल का रिज़ल्ट एसएसएलसी एंड पीयूसी में माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट क्या है, उनका परफॉर्मेंस क्या है, उनके बारे में डिस्कशन था आज। वो रिव्यू किए और इंस्ट्रक्शन भी दिए कि आने वाले दिनों में रिज़ल्ट को इम्प्रूवमेंट करना और एडमिशन्स को भी बढ़ावा देना। 75-25 जो रेशो है वो 100% का है, कंप्लीट करना। इसके अलावा ये कोविड, आफ्टर कोविड हम स्कूल्स एंड कॉलेजेस किस तरीके से हम ओपन करना, प्रिकॉशंस क्या लेना, उसके बारे में मिनिस्टर साहब ने इंस्ट्रक्शन दिया सबको। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी बहुत सारे बिल्डिंग्स बनने वाले हैं, होने वाले हैं, तो उनको शिलान्यास और उसके साथ साथ इनॉग्रेशन किस तरह किया जाए बिकॉज ऑफ दिस कोविड, उसके तरफ भी विस्तृत रूप से चर्चा हुई। तकरीबन 2.5 घंटे से मिनिस्टर साहब ने अपना कीमती टाइम देकर सबको सजेस्ट किया। वी आर फॉलोइंग द सेम इंस्ट्रक्शंस। अभी खाली एजुकेशन के बारे में डिस्कस हुआ या और भी जो माइनॉरिटीज़ के प्रॉब्लम है कर्नाटका स्टेट में, उसके बारे में भी डिस्कस हुआ? जी, ये देखो हमारा इम्प्लीमेंटेशन वी आर डायरेक्टली रिलेटेड टू एजुकेशन एंड एजुकेशन रिलेटेड है। तो और एक मुद्दा था कर्नाटका माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसके बारे में आज रिव्यू नहीं था। ये प्योरली अपने डिपार्टमेंट के इश्यूज थे उसमें। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, यही मुद्दा मेजर था आज का। मेन जो है भी माइनॉरिटीज़ के जितने भी स्कूल्स हैं उसके बिल्डिंग थोड़ा बहुत बुरी हालत में है, जहाँ पर बैठने के लिए बच्चों के लिए फैसिलिटीज बाकी सब दे रहे हैं, आप खाना दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, ये सब चीज़ें। एक जो माहौल है, जो प्राइवेट स्कूल क्या है और गवर्नमेंट क्या फैसिलिटीज दे रही है स्कूल, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से हटकर फैसिलिटीज़ दिए जा रहे हैं। तो ये तकरीबन क्या है 5-6 साल का डेवलपमेंट है, जो भी डेवलपमेंट्स है 5-6 साल का डेवलपमेंट है। उससे पिछले देखें तो आप बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटी क्लब थे, अब हटकर है। ये सिर्फ 4 या 5 साल का डेवलपमेंट है। तो इस इतने कम समय में इतने हमारे 154 रेसिडेंशियल स्कूल्स बने और 304 हॉस्टल्स बने और 200 मौलाना जे स्कूल्स बने। ये कोई मामूली अचीवमेंट नहीं है, ये बिग अचीवमेंट है, कम समय में ज़्यादा अचीवमेंट्स। और रही बात फैसिलिटीज़ की, अब जो भी हम इंस्टीट्यूशंस हमारे हैं उनको अपग्रेड करने के लिए एडिशनल क्लासरूम्स, अभी भी आफ्टर द मीटिंग हम वही डिस्कस किया, व्हाट आर द डिमांड्स। तो बेसिक चीज़ है, जो स्कूल्स ऑलरेडी बन चुके हैं, सैंक्शन हुए, उनको एडिशनल बिल्डिंग्स देना, एडिशनल क्लासरूम्स देना और फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना, ये मेजर मुद्दा ये भी था। आज मिनिस्टर साहब ने इंस्ट्रक्शन दिया हाउ टू इम्प्रूव बोलकर, और उन्होंने सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स को मौका भी दिया कि तुम्हारे डिमांड्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, पूरा उन्होंने सुना, नोट किया, और आने वाले दिनों में वी आर गोइंग टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। ये आपका जो इतना सब तरक्की हो रही है स्कूल के बारे में, ये श्रेय आप किसको देना चाहिए? कौन सी गवर्नमेंट है जो ये सब काम? जी, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ही है, हम दूसरे इनका नाम नहीं ले सकते। बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ओनली दिस इज हैपनिंग। तो इससे आवाम खुश है जो आप जो कर रहे हैं, जो माइनॉरिटीज़ के बारे में जी, इससे लोग शायद बहुत खुश है। और मैंने सुना कि फीस भी नहीं है, खाने पीने का इंतज़ाम है, हॉस्टल का इंतज़ाम है। यस, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो गरीब और माइनॉरिटीज़ के लिए। देखिए, ये जो मुद्दा है बहुत मेन मुद्दा है। माइनॉरिटीज़ में ज़्यादा से लोग बीपीएल से बिलोंग करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर बिलोंग्स टू दी माइनॉरिटीज आर बिलोंग्स टू बीपीएल कम्युनिटी। तो पैर में जो डालते, स्लीपर से लेकर सर को लगाने वाले तेल तक, हम एवरीथिंग वी आर गिविंग फ्री। शूज़, ड्रेस, यूनिफॉर्म, टाई, सॉक्स, बेल्ट, ओके। हर महीना एक बार सूची संभ्रमा किट, और हर बार उसमें 4 आइटम्स, सोप, पेस्ट, ऑयल एंड ब्रश एवरीवेयर। अब मैं नहीं समझता कि हम अपने घरों में हर महीना इतना सिस्टमेटिक हम मटेरियल्स खरीदते हैं। तो बेहतरीन, तो इसका मतलब क्या है बोले तो गवर्नमेंट इज़ टेकिंग केयर। आवाम क्या है, जो भी फैसिलिटीज़ हमारे बच्चों को जो दिया जा रहा है खुश है, और उसको और भी हम अपग्रेड करना चाहते हैं।
कौन से बच्चों का फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं एडमिशन के लिए, कॉलेज हो, स्कूल हो जी। या हाई स्कूल हो? जी। पहले गरीब लोगों में ऐसे कौन से है आपके पास ऑप्शंस? नहीं, गरीब तो गरीब इज ऑल आर गरीब उसमें इनकम लिमिट में जो लोग कम है सभी को हम, जो भी बीपीएल है या अबो बीपीएल है, दो आर इंटरेस्टेड टू कम एंड ज्वाइन हमारे पास एडमिशन लेना चाहते हैं, सभी को देने के लिए हम तैयार हैं एडमिशंस। एक हिसाब से जो बेलगावी डिस्ट्रिक्ट एक एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं, अभी यहाँ पर बच्चे हैं जी। तो उनके लिए इतनी सीट अवेलेबल है? देखिए वही कह रहा था मैं, जो बेलगाम एंड गुलबर्गा डिवीजन है यहाँ डिमांड ज़्यादा है, सीट्स कम है, यानी कि अवेयरनेस ज़्यादा है, और भी हम स्कूल्स एंड कॉलेजेस को और भी बढ़ाना चाहते हैं इधर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया महबूब साहब, आप जो कर रहे कोशिश, और शायद ये आवाम के लिए बड़ी खुशी की खबर है कि माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट के ज़रिए लोगों का भला हो रहा है, खासकर माइनॉरिटीज़ का। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपके मिनिस्ट्री का और आपके गवर्नमेंट का। थैंक यू। थैंक यू सर। बेलगावी माइनॉरिटीज के डीसी श्री गोपाल लमानी साहब ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और बेलगावी जिले के माइनॉरिटीज के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इंतजाम किए हैं वो बताया। जो बेलगावी डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटीज़ के डीसी हैं, मैं इनकी बहुत सारे फ़ोन पे बातचीत होती थी, आज मौका मिला। सर आप बताइए आपका डेवलपमेंट क्या है बेलगाम में? आप तो साहब तो बहुत तारीफ की है बेलगाम की। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಈ ದಿನ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಳಷ್ಟು ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. SLCಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಂದು ಖುಷಿಯನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಲು ಸಹ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಹ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಸಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹರ್ಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ओके सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन शोएब मक्तेदार के साथ मैं जमील अहमद। तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम न्यूज़ इंडिया। जय हिंद।